Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन 1 नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स पार्ट ए ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ साइड 7 cm 8 cm and 9 cm. B triangle ABC with AB is equal 8.7 cm, AC is equal 7 cm and BC is equal 6 cm. C PQR such that PQ is equal QR is equal PR is equal 5 cm. D DEF with measure angle D90. E XYZ measure of angle Y is 90 degree and XY is equal YZ. F LMN with measure of angle L is equal 30 degree and measure of angle M is equal 70 degree and measure of angle N is equal 80 डिग्री। स्टूडेंट्स, इस सम को सॉल्व करने से पहले आपने एक बेसिक रूल अंडरस्टैंड करना होगा। जब किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जब ट्रायंगल की ओनली 2 साइड इक्वल होती है तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं और जब ट्रायंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती तो उसे स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। इसी तरह से जब ट्रायंगल के तीनों एंगल एक्यूट हों तो उसे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं और जब किसी भी ट्रायंगल में वन एंगल 90 हो, 90 मीन्स राइट एंगल होता है, तो उसे राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोला जाता है और जब ट्रायंगल में कोई भी एंगल ऑब्ट्यूज हो मीन्स मोर देन 90 हो तो उस ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। एक बार फिर से इसे माइंड करें। If the 3 sides of a triangle are equal, then it is equilateral triangle. And if there are only 2 sides are equal, then it is isosceles triangle. If no one sides of a triangle equal, then it is scalene angle. If all 3 angles of a triangle are acute, then it is called acute angled triangle. If one angle of triangle is 90 degree, then it is right angled triangle. If one angle of triangle is obtuse, then it is obtuse angled triangle. जैसा कि पार्ट ए में दिया गया है, a triangle with length of sides 7 cm, 8 cm and 9 cm. Students, no one sides of this triangle is equal, so it is scalene triangle. हम यहाँ देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल की कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, इसीलिए इसका नाम स्केलिन ट्रायंगल बोला जाएगा। पार्ट बी देखते हैं। ट्रायंगल ABC with AB is equal 8.7 cm, AC is equal 7 cm and BC is equal 6 cm. Here no one sides is equal. यहाँ कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, सो इट इज स्केलिन ट्रायंगल। यहाँ पर कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, इसीलिए इसका नेम
स्केलिन ट्रायंगल रखेंगे। पार्ट सी, जिसमें आपको दिया गया है पी क्यू आर सच दैट पी क्यू इज इक्वल क्यू आर इज इक्वल पी आर इज इक्वल 5 centimeter. Students, we can see here three sides of this triangle are equal with length 5 centimeter. Here three sides are equal, so it is equilateral triangle. Students, यहाँ पर तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसीलिए इसका नाम इक्विलेटरल ट्रायंगल रखेंगे। आंसर रिटर्न करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फॉर डी, triangle DEF with measure of angle D is 90 degree. Here we have one angle 90 degree right angle, so it is right angled triangle. Students, यहाँ ट्रायंगल DEF में एक एंगल की मेजर 90 डिग्री है। 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल, सो इट इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। पार्ट ई, XYZ with measure of angle Y is equal 90 degree and XY is equal YZ. Students, we can see here measure of one angle is 90 and two sides also equal, so it is right angle isosceles triangle. Students, यहाँ हम देख रहे हैं कि वन एंगल की मेजर 90 डिग्री है और इसकी टू साइड्स भी इक्वल हैं, इसीलिए इसे बोलेंगे राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट, ट्रायंगल LMN with measure of angle L 30 degree, measure of angle M 70 degree and measure of angle N is 80 degree. Three angles are acute, so it is acute angled triangle. Students, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर थ्री एंगल्स एक्यूट हैं, लेस देन 90 हैं। यहाँ पर तीनों एंगल एक्यूट हैं, इसीलिए इसका नेम होगा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। Question 2. Match the following measure of triangle and type of triangle. Part first, three sides of equal length. Type of triangle में A दिया है, इसके लिए two sides of equal length, isosceles right angle triangle. All sides of different length, obtuse angled, three acute angle, right angled, one right angle, equilateral, one obtuse angle, acute angle, one right angle with two sides of equal length, isosceles. स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखें पार्ट फर्स्ट में दिया गया है थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी तीन साइड्स इक्वल हैं, तो यह इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिसका मैच ई के साथ होगा। सेकंड दिया है टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी टू साइड्स इक्वल लेंथ की हों, तो वह आइसोसेलेस होगा, मीन्स सेकंड का मैच जी के साथ होगा। थर्ड दिया है आपको ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, जिसकी ऑल साइड डिफरेंट लेंथ की हों, वह स्केलिन ट्रायंगल होता है, इसका मैच ए के साथ होगा। थ्री एक्यूट एंगल हो तो वह इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, मीन्स इसका मैच ई के साथ होगा। वी वन राइट एंगल, जिसमें वन एंगल राइट हो तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, इसका मैच डी के साथ होगा। 6 ऑब्ट्यूज एंगल, जिसमें ऑब्ट्यूज एंगल हो तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल्ड बोलते हैं, मीन्स 6 का मैच सी के साथ होगा। 7 वन
राइट एंगल विद टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। एक राइट एंगल जिसमें टू साइड्स इक्वल हों, तो ऐसे ट्राइंगल को आइसोसेलेस राइट एंगल बोलते हैं। मिस 7th का मैच बी के साथ होगा। क्वेश्चन 3, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन टू डिफरेंट वेज। You measure the nature of the angle by observation. Students, यहाँ आपको कुछ ट्राइंगल्स दिए गए हैं, आपने डिफरेंट वे से इनका नेम देने हैं। डिफरेंट वेज मीन्स फर्स्ट आप उन्हें अकॉर्डिंग टू साइड्स माइंड करेंगे और सेकंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स। इन पार्ट ए, here we can see all three angles are acute, so it is acute angled triangle, and in this triangle two sides are equal, so it is isosceles triangle. हम यहाँ देखते हैं कि इस ट्राइंगल में तीनों एंगल एक्यूट हैं, इसीलिए इसका नेम एक्यूट एंगल होगा, और इसमें टू साइड्स इक्वल हैं, इसीलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। रिटर्न करें, एक्यूट एंगल्ड एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ इन पार्ट बी, हियर वी कैन सी one angle is right, so it is right angled. Here no one side is equal, so it is scalene triangle. पार्ट बी में हम देखते हैं कि यहाँ पर वन एंगल राइट है, इसीलिए राइट एंगल हो गया, और इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, इसीलिए इसे स्केलिन ट्राइंगल भी बोलेंगे। आंसर रिटर्न करें, राइट एंगल्ड एंड स्केलिन ट्राइंगल। इन पार्ट सी, हियर वी कैन सी वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, सो इट इज ऑब्ट्यूज angled, and here two sides also equal, so it is isosceles triangle. Students, पार्ट सी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एंगल ऑब्ट्यूज है, इसीलिए इसका नाम ऑब्ट्यूज होगा, और इसकी टू साइड्स इक्वल हैं, इसीलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। तो इसका नेम हुआ ऑब्ट्यूज एंगल्ड एंड isosceles triangle. In part D, here we can see one right angle, so it is right angle, and two sides are also equal, so it is isosceles triangle. Students, part D में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वन एंगल राइट है, इसीलिए राइट एंगल हुआ, और टू साइड्स इक्वल हैं, इसीलिए यह आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। इसका नेम रिटर्न करें, राइट एंगल्ड एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। इन पार्ट ई, हियर वी कैन सी ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, सो इट इज इक्विलैटरल, एंड ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट, सो इट इज एक्यूट एंगल्ड। स्टूडेंट्स, पार्ट ए मीन्स फिफ्थ पार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसीलिए इक्विलैटरल हो गया, और इसके तीनों एंगल एक्यूट हैं, इसीलिए एक्यूट एंगल हो गया। इसका नेम रिटर्न करें, इक्विलैटरल एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट, इन पार्ट एफ, वी कैन सी one angle is obtuse, so it is obtuse angled, and here no one side is equal, so it is scalene triangle. पार्ट एफ मीन्स पार्ट 6 में हम देखते हैं कि यहाँ पर वन एंगल तो ऑब्ट्यूज है, इसीलिए ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, और इसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, इसीलिए स्केलिन ट्राइंगल हो गया। इसका नेम रिटर्न करें, ऑब्ट्यूज एंगल्ड एंड स्केलिन ट्राइंगल। क्वेश्चन 4, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल using matchstick. Some are shown here. Can you make a triangle with A. 3 matchstick, B. 4 matchstick, C. 5 matchstick, D. 6 matchstick. Remember,
You have to use all the available matchstick in each case. Also, name the type of triangle in each case. If you cannot make a triangle, think of reason for it. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मैच स्टिक से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं। जिस तरह से आपको कुछ ट्रायंगल दिए गए हैं, आपने ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं 3 मैच स्टिक से, 4 मैच स्टिक से, 5 मैच स्टिक से एंड 6 मैच स्टिक से। आपने ध्यान रखना है कि उतनी ही मैच स्टिक यूज हों हर केस में जितनी यहाँ दी गई हैं। आपने उस ट्रायंगल का नेम भी बताना है कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। यदि आप कोई ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकें तो आपने यह भी बताना है कि यह क्या रीजन है जो आप यह ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले बोला है 3 मैच स्टिक से। By using 3 match stick, we may make it triangle as shown. 3 मैच स्टिक से आप इस तरह का ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो जैसा कि हमने यहाँ दिखाया है। इसमें ओनली 3 मैच स्टिक यूज हो रही हैं। 3 मैच स्टिक इक्वल लेंथ की यूज हो रही हैं। इट मीन्स इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसीलिए यह इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। आंसर रिटर्न करें। द एबव ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। पार्ट बी में 4 मैच स्टिक दी गई हैं जिससे आपने ट्रायंगल ड्रॉ करना है। फर्स्ट आप योरसेल्फ ट्राई करें, क्या 4 मैच स्टिक से कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल हो सकता है। आप सेल्फ ट्राई करें। मैं आपको 20 सेकंड देता हूं जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं। टाइम अब स्टार्ट होता है। आपने देख लिया होगा 4 मैच स्टिक से ट्रायंगल पॉसिबल नहीं हो रहा। क्यों? कि किसी भी साइड्स में आप 2 स्टिक रखते हैं तो बाकी 2 से ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पाता। यह पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रायंगल का एक यह रूल होता है, सम ऑफ 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल है, इसीलिए यह पॉसिबल नहीं हो पा रहा। आंसर रिटर्न करें। By using 4 match stick, we cannot make a triangle since we know that sum of the length of any 2 sides of a triangle is always greater than the third sides. पार्ट सी, जिसमें आपसे बोला गया है 5 मैच स्टिक्स। By using 5 match sticks, we can make a triangle as shown here. आप 5 मैच स्टिक्स यूज करके इस तरह का ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आप देखते हैं एक साइड में हमने ओनली 1 स्टिक यूज की है और 2 साइड्स में 2-2। यहाँ पर 2 साइड्स में 2-2 स्टिक यूज हो रखी हैं, मीन्स इन 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, इसीलिए इसे बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आंसर रिटर्न करें। द एबव ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पार्ट डी, जिसमें आपसे बोला गया है यूजिंग 6 मैच स्टिक।
By using 6 matchsticks, we can make a triangle as shown below. आप 6 मैच स्टिक यूज करके इस तरह का ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें हर एक साइड्स में 2 स्टिक्स यूज की गई हैं। हर साइड में 2 स्टिक यूज की गई हैं मीन्स तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसीलिए इसे बोलेंगे इक्वालेटरल ट्रायंगल। आंसर रिटर्न करें। The above triangle is an equilateral triangle.